सेटिंग करा था कैसे सुबह जल्दी आने वाला इधर। DG sir, hello, good morning. Hello. Sir, your voice is coming. Your voice is coming. No issues. Shiv Sharma, sir. Yeah. Thank you. Acha, am I clear? Yes. Perfect. Okay, DG sir has joined, na? Yeah, I am unmuting him, sir. I think. And now we already have about 636 people joined. शिव शर्मा जी, वो किरण रिजिजू साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट्स। जैसे आएंगे तो बता देना। जी आ गए सर, साहब आ गए। आपको खुद को दिखना है। ऑनरेबल मिनिस्टर has joined now. वो लाइव टीम है ना जी सर, इधर से वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। Sir, we already have about 700 people already online, sir. Shall we start? Yes, Shivji. Sir, good morning to all, sir. I think Munda Sahab is still muted. Shiv Sharma Sahab. Sir. Can administrator unmute Munda Sahab? Yes, sir. 1 second, sir. Good morning, everyone. We are honored to have among us the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and Honorable Minister of Tribal Affairs with us. We are also joined by Shri Sandeep Pradhan, Director General SAI, and Shri Pramod Chandurkar, Secretary General, Archery Association of India. Before we request the Honorable Minister to formally launch, I request Shri Sandeep Pradhan, Director General SAI, who conceived this idea, to speak to address us first. Pradhan Sahab. Respected Munda Sir, respected Kiran Rijiju Sahab, General Secretary of the Federation, Mr. Sanjeeva Singh, other office bearers, eminent players, and all the coaches. It is extremely great privilege that with the help of Federation, we have been able to launch the training program. It's a need of an hour, and I expect that each of the participant will get immense benefit from the training program. I was extremely satisfied, rather pleasantly surprised to see more than 600 participants coming and joining this program. Without the blessings of Munda Sahab, this wouldn't have been possible. And Rijiju Sahab has been inspiring us on every occasion. And as a part of the strategy, this is a training program that we have started. Now, without loss of time, I'll request Shiv Sharma ji to take this forward. Thank you very much, everyone, for encouraging us by joining the program. Sir, thank you very much for your words. Now, I request Honorable Minister of Sports, Sri Kiran Rijiju sir, to please address us. थैंक यू। अर्जुन मुंडा जी शायद जुड़ गए हैं, और संदीप प्रधान जी हमारा डीजी साई, और शिव शर्मा जी जो ये सारा उसको कंडक्ट कर रहे हैं, और शायद वो कलकत्ता में है, और संजीव सिंह जी अपने आर्चरी एसोसिएशन की ओर से आए हैं, और जितने भी कोचेस यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूरा टीम, संदीप प्रधान जी और पूरा टीम, और स्पोर्ट्स फेडरेशंस के जितने मेंबर्स हैं, खास करके आज के इस समय में आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी के जो टीम है, संजीव सिंह जी और उनके साथी, और जितने इस मुहिम में जुड़े हुए टेक्निकल्स लोग हैं, मैं आपको बधाई देता हूं
कि ये डिफिकल्ट समय में हमने अपने उपयोग के लिए, खेल के लिए इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका निकला है। मेरा ख्याल स्पोर्ट्स, ये देश है कोविड-19 के समय में इसको बहुत अच्छी तरह से खेल के लिए इस्तेमाल करने का जो प्रयास है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये सिर्फ कोविड-19 के लिए ही नहीं करके आगे भी इस तरह का कार्यक्रम वो चलते रहेगा। दुनिया बहुत ही अलग तरीके से चल रहे हैं आज के दिन में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत फायदा उठा रहे हैं। तो छोटे छोटे मीटिंग हो या बड़ा मीटिंग, सबको हर समय इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन से इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर सकते हैं। तो ये कोविड-19 का जो डिफिकल्ट दौर है, इसी समय में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो कोविड-19 को फाइट कर रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, साथ साथ जो अपने स्पोर्ट्स के बारे में इंडिया में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम भी चलते रहेंगे। ये जो कोचेस के लिए ट्रेनिंग, कोचेस के लिए वर्कशॉप या कोचेस का कोचिंग, ये बहुत ही अहम है। मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि इंडिया में जैसे ट्रेनर टीचिंग को कौन ये करते हैं, टीचर्स को फिर कौन ट्रेन करते हैं, हम लोग इस चीज पे कम ध्यान देते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या है कि टीचर स्टूडेंट, तो खेल के क्षेत्र में भी कोचेस एंड एथलीट्स, हम लोग इतने ही देखते हैं। एथलीट्स को इम्प्रूव करने के लिए कोचिंग का जरूरत होता है, तो कोचिंग को फिर इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? कोचिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइंस का माध्यम से अलग अलग हम लोग इनपुट्स करते हैं। फिर वही जो कोच है, जो टीचर है, कोच का क्वालिटी उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं ये भी मानता हूं कि हर कोच का अपना एक स्टाइल होता है। एवरी कोच कैन नॉट बी सेम, एवरी कोच हैज इट्स ओन वे ऑफ कोचिंग, बट देयर आर सर्टेन बेसिक्स व्हिच हैज टू बी यूनिवर्सली फॉलोड। और मैं तो टेक्निकली कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी जाके देखूं कि हर कोच कैसे कोचिंग करते हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते हम जाएंगे तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन। फिर मिनिस्टर आया है, अपने स्पोर्ट्स एकेडमी में मिनिस्टर आया है, तो वो सब बाकी खातिरदारी या एक्सप्लेनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ईच कोच किस तरीके से कोचिंग करते हैं और रिजल्ट कैसे लाते हैं, क्योंकि कोच एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है, ये तो मालूम है, लेकिन वो कैसे सिखाते हैं? हाउ डज ए कोच गिव्स द कोचिंग, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द स्टाइल, जिससे वो स्टूडेंट, उनका जो एथलीट है, उनका प्लेयर जो है, वो इंटरनेशनल प्रेशर झेलता है और राइट समय में राइट परफॉर्मेंस देता है। मैं अपने डीजे संदीप जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इंडिया में स्किल के बारे में बहुत कम तवज्जो देते हैं। नहीं देते ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग हार्डकोर ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन उसमें कौन सा जो बेसिक है जिसको छूने से परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी अर्जुन जी बैठे हैं और सब आपका टेक्निकल सेशन शुरू करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोग कोचिंग क्या होते हैं बचपन में नहीं जानते थे, तो हमारे यहाँ में पहली बार एक फुटबॉल कोच आया, तो फुटबॉल कोच आया और उन्होंने कोचिंग शुरू कर दिया। सब स्टूडेंट को बुलाया, पहले दिन बुलाया, सबको दौड़ाया, आधा घंटा दौड़ाया, फिर बोलता है आज छुट्टी। सेकंड डे में फिर वो कोच ने सबको बोला जॉगिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, जॉगिंग करो, 1 घंटा कराया, फिर छुट्टी। थर्ड डे फिर बुलाया सबको, हम लोगों को, स्टूडेंटों को बुलाया, दौड़ो, स्ट्रेचिंग करो। तो लास्ट में स्टूडेंट सब हम लोग बोला, अरे ये क्या कोचिंग है, फुटबॉल कोच है। बोलता है तो फुटबॉल का चेहरा ही नहीं देखा हमने, तो ये तो सिर्फ दौड़ा रहे हैं, फुटबॉल तो देखा ही नहीं, फुटबॉल देखने का मौका कब होगा, फुटबॉल कब खेलेंगे। तो 5वें दिन में उन्होंने बताया, देखो भाई, कोई भी चीज करने से पहले उसका तैयारी बहुत जरूरी है। अगर सबको हम फुटबॉल सीधा पकड़वा देंगे तो आप तो वो तो पकड़ ही रहे हैं। वो फुटबॉल पकड़ने के लिए जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल फिटनेस है, वो चाहिए, तभी आप अच्छा से फुटबॉल को खेल पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को पहला मेरा जो इंट्रोडक्शन टू दी
मैंने कोचिंग नहीं लिया, वो जस्ट एक ब्रीफिंग एक सप्ताह के लिए आया था, बेसिक बताने के लिए। तो वैसे ही हर कोच का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे मैंने कहा, सब टीचर अलग होता है, सब सेम नहीं होता, लेकिन जो बेसिक होता है, कुछ बेसिक चीज होता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत बड़ा टारगेट लगाया है, ओलंपिक्स में अगले 8-9 साल में आगे बढ़ने का एक टारगेट सेट किया है, और उसमें कुछ डिसिप्लिन आइडेंटिफाई किए गए हैं। उस डिसिप्लिन में आर्चरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन बीइंग आइडेंटिफाइड वेयर इंडिया शुड एक्सेल। इंडिया ने बहुत अच्छा किया आर्चरी में, ओलंपिक्स को छोड़, ओलंपिक्स में भी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में आर्चरी एसोसिएशन एक नई मुकाम पे पहुंचेंगे, मुझे पूरा यकीन है, इसमें कोई मेरा डाउट का बात ही नहीं है। अर्जुन मुंडा जी मेरा बहुत पुराना साथी है, सीनियर कलीग है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज के दिन में हमारे सीनियर कलीग हैं, ट्राइबल अफेयर्स मंत्री हैं, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, स्किल है, और उससे भी ज्यादा अर्जुन मुंडा जी गाँव में ट्राइबल लोगों के बीच में और आम जनता के बीच में रह करके, तो उसका जो नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस पब्लिक के बीच में भी और आर्चरी के क्षेत्र में भी, ये बहुत ही हम लोगों को आर्चरी के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलने वाला है। और अर्जुन मुंडा जी नए जो प्रॉपरली फिर से इलेक्टेड हुए हैं आर्चरी एसोसिएशन के, तो उसको तो वैसे हम लोग तो पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं, मीटिंग में मिलते रहते हैं, तो मैं उनको बधाई दे चुका हूँ। लेकिन आज फिर सबके सामने में आर्चरी के जो कोचिंग के लिए जो लोग आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सबका सामने में मैं फिर से अर्जुन मुंडा जी को बधाई देता हूं। और आपके नेतृत्व में हमारे साई के टीम के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं। आपके टीम बहुत अच्छे आपके वहाँ पे आपके एसोसिएशन में काम करते हैं, और आज जो कोचेस के साथ जुड़े हैं पूरा देश भर में, हम लोग आर्चरी को बहुत एक नई मुहिम से हम लोग ले जाने का अर्जुन मुंडा जी से जो चर्चा किया है। और कोविड-19 नहीं होते तो हम लोग प्लान कर ही रहते कि वहाँ रांची में आज तक का सबसे बड़ा आयोजन तीरंदाज के लिए, आर्चरी के लिए, वो अर्जुन मुंडा जी से मैंने चर्चा किया था। तो अर्जुन मुंडा जी तैयार थे, अभी थोड़ा सा उसका डिले हो जाएगा, लेकिन वो जरूर करेंगे। ये कोविड-19 को हम लोग जैसे भी सक्सेसफुली इसको हराने के बाद फिर हम लोग का ऑन फील्ड ट्रेनिंग शुरू होंगे। अब ऑफ फील्ड कोचिंग जो का कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं फिर से बधाई देता हूं, और मैं भी जुड़े रहूंगा। आपका जो टेक्निकल बातें हैं उसको भी सुनूंगा, और शाम को स्पोर्ट्स साइंस का जो कार्यक्रम रखा है उसमें भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत जो आर्चरी के इस सेशन में मुझे बुलाया, तो मैं बहुत अच्छा लगा इसके लिए, क्योंकि आर्चरी मेरा सिर्फ फेवरेट स्पोर्ट्स ही नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ही नहीं, बल्कि मैं आर्चरी एसोसिएशन से भी काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो मंत्री बनने के बाद रिजाइन कर दिया, नहीं तो मैं अपना स्टेट का आर्चरी का प्रेसिडेंट भी था, और यहाँ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बहुत सालों से विजय कुमार मल्होत्रा जी के साथ रहा। क्योंकि मैं मंत्री रहे और एमपी थे, तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी मीटिंग जाते थे। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आर्चरी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इंडिया का बहुत जाने माने एंशिएंट जमाने से आर्चरी को हम लोग चलाते आए हैं। तो आज आर्चरी के सेशन में मुझे बुलाया, मैं फिर से आप सबको अर्जुन मुंडा जी से भी अभी हम लोग थोड़ा सुनेंगे, और बाकी जो टेक्निकल जो असली जो आप लोगों का कोचिंग है, और कोचेस को जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स और टॉप जो अवार्डीज है, द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं, और बहुत सा जो नामी वाला लोग हैं आर्चरी के क्षेत्र में, उनसे भी बहुत कुछ सुन करके सीखेंगे। मैं आपको इस स्पेशल जो सेशन है कोचेस के लिए, जो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, इनहेंसमेंट ऑफ टैलेंट, सब कुछ इस पे बेनिफिट मिलेंगे। आप सबको फिर से मैं बधाई देते हुए आपको मुझे बुलाने का धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय अर्जुन मुंडा सर से विनती करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद दें। मैं बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी अबाउट 750 लोगों ने हमको ज्वाइन कर लिया है। मुंडा सर भारत सरकार के खेल मंत्री तो हैं ही, साथ में आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष भी बने हैं। मैं मुंडा सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया अपना आशीर्वचन दें। मुंडा सर जी, बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय मित्र मंत्रिमंडल के सहयोगी किरण रिजिजू जी,
हमारे साई के डायरेक्टर साई जी, प्रधान जी, और संजीवा सिंह सहित हमारे आर्चरी के सभी कोचेस, सभी प्लेयर्स, सभी ऑफिशियल्स। मैं सबसे पहले हमारे डायनामिक लीडरशिप जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को मिल रहा है, किरण रिजिजू जी को और हमारे साई के डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस कोरोना जैसे महामारी के डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सब इस कार्य के लिए लगे हुए हैं कि भारत के खेल जगत को हम दुनिया के प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाने के लिए कैसे सफल बने। और इसी दृष्टि से आज ये कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साई के तत्वाधान में ये जो आयोजन हुआ है अभूतपूर्व ढंग से सफल होगा, जिसमें खेल के प्रशिक्षक खुद ट्रेनिंग लेकर के आने वाले दिनों में अपने खिलाड़ियों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए तैयार करेंगे, उसके टिप्स मिलेंगे, उनके ऑनलाइन वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी जिसके माध्यम से अच्छे खिलाड़ी सामने आए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के आयोजन से जो न केवल तीरंदाजी आर्चरी बल्कि इसके साथ साथ ही और भी फेडरेशन के कार्यक्रमों को और भी अन्य खेलों को खेल मंत्रालय बहुत ही ज्यादा, इसमें मैं कहूँगा हमारे सहयोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ किरण रिजिजू एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, खिलाड़ी भी हैं, और साथ ही साथ लगातार कई वर्षों का अनुभव के साथ उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है जिसमें भारत को प्रतिबिंब करने का बहुत अच्छा अवसर अपने युवाओं के माध्यम से मिलेगा और वो सफल होगा। इस नेतृत्व से मुझे पूरा विश्वास है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज यह जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं कैसे मिले यह सुनिश्चित होगा। और यह भी कहते हुए खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो आजकल कोलेमरी जैसे एक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में मिले हैं, उसका भी लाभ हम लोगों को अच्छा मिलेगा, जिसके माध्यम से न केवल इस फील्ड के बारे में बल्कि अदर एक्सपीरियंसेस भी, अदर सुविधाएं भी और अदर अवसरों को भी हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। उसके माध्यम से हम साइकोलॉजिस्ट के रूप में, इसके माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में, मेंटल ट्रेनर के रूप में हम यहाँ ऐसे चीजों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और आने वाले दिनों में इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा इस ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं कहना है। मैं संजीवा सिंह को खास तौर से इस बात के लिए, क्योंकि वो बहुत डायनामिक और बहुत उत्प्रेरित होकर के लगातार संपर्क में रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि हमारा इंडिया का आर्चरी को हम और अधिक बेहतर ढंग से कैसे कर सके। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, साई को यही कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा टीम, हमारे जो भी राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के पदाधिकारी हैं, वो सारे पदाधिकारी और ऐसे लोग जो तीरंदाजी में रुचि लेने वाले लोग हैं, सबके साथ मिल करके, और खास करके मैं इस बात को ज्यादा और महत्व देना चाहता हूं कि तीरंदाजी एक तो ट्रेडिशनल तरीके से जुड़ा हुआ खेल भारत का, चाहे आप किसी भी ग्रंथों में, किसी भी साहित्य में ले तो इसकी बहुत चर्चा है और उससे जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये है, और दूसरा कि आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में आज भी इस पर विश्वास करता है, इसके बारे में उसकी धारणा इतनी मजबूत है जिसको आप निकाल नहीं सकते बाहर, वो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा के रूप में हमेशा रहता है। तो वैसी चीजों को हम कैसे और बेहतर ढंग से सामने लेकर के आ सके, यही कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि साई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो सहयोग है, उस सहयोग से और इस तरह के आयोजन से, इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में
हम अच्छे खिलाड़ी, जैसे हमारा जो अभी नियरेस्ट टारगेट है हम आने वाले ओलंपिक में, अभी कुछ दिनों के लिए टल गया है ओलंपिक, लेकिन जो आने वाला जापान में जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें हमारा आर्चरी का अच्छा परफॉर्मेंस है। और मैं यही आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूरे सहयोगी तन मन धन से लग करके इसे बेहतर ढंग से कैसे प्रतिबिंब किया जाए, बेहतर ढंग से कैसे विजुलाइज हो, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को गर्व होगा अपने आर्चरी पर, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पर, हिंदुस्तान के वैसे मेधावी खेल प्रेमियों के ऊपर कि एक अच्छा खेल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बाकी सारी चीजें हमारे सहयोगी किरण रिजिजू जी ने एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत सारी बातों को कहा है, और क्लोज कोऑर्डिनेशन से बेहतर ढंग से कैसे काम हो ये हम लोगों की कोशिश होगी। मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ इस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, जिसमें ट्रेन और ट्रेनी सारे लोग जो सिखाने वाले ही सीखने का काम करेंगे और फिर सिखाएंगे। ये बहुत बड़ी कोशिश है। इस तरह की कोशिशों को हम कामयाब बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस खेल को, इस लर्निंग को हम लगातार जारी रखें और सभी खेलों में इसको और अच्छे ढंग से प्रारंभ करें। मैं अपने आर्चर्स को, आर्चरी से जुड़े हुए लोगों को, आर्चरी के कोचेस को और जो ऑफिशियल्स इस समय ऑनलाइन है सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने बिजी समय में से इतना समय निकालकर हमको अपना आशीर्वचन दिया इस पहले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए जो साई ने पहली बार शुरू किया है। अगर आपकी परमिशन हो तो अब मैं कोर्स के डायरेक्टर संजीवा सिंह जी के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेक ओवर करें। और सर संजीवा जी is has brought lot of laurels for the country. He has been awarded Arjun Award and also Dronacharya Award. Sir, Sanjeev ji will take over, sir. Thank you, sir. Thank you. First of all, let me thank हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को, हमारे अध्यक्ष जो हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अर्जुन मुंडा जी को, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान जी को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, हमारे प्रमोद चंदूकर और हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमेटी के डॉक्टर जोरिस और मिस्टर हुसैनी को। सर आज ये एक इतिहास रचा जा रहा है सर, और ये थैंक्स करना चाहेंगे हमारे जो विजन जो हमारे प्रधान साहब का था, रिजिजू साहब का था, मुंडा जी का था, क्योंकि दो रीजन है सर। दो रीजन इसलिए है सर क्योंकि तीरंदाजी जो है एक तो आदिवासियों का खेल है। आज इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से एक बच्चा जिसके पास टैलेंट है पूरे देश में, गांव में है, वो हमसे जुड़ सकता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे साई का और एआई का कि ये चीज पॉसिबल हो पाया। दूसरा, आज डिजिटल मीडिया जो कि वर्ल्ड में फैला हुआ है तरीके से, आज हमने सभी लोगों को जोड़ा है सर, चाहे वो साइंटिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, मेंटल ट्रेनर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, इन सबको जोड़ के जो टॉप कोचेज हैं हमारे इंडिया के, चाहे वो किसी भी अकेडमीज को बिलोंग करते हैं, आज वो अपने नॉलेज जो है, उन्होंने 30-40 साल से जो अपना नॉलेज है, उस नॉलेज को वो एक एक ऐसे प्लेयर्स के पास ले जाना चाहेंगे, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ले जाना चाहेंगे, ऐसे ऐसे रूरल विलेजेस में जा पाएगा। ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि आप सब ने इस चीज को समझा है कि इसको हम ले जाना है। और डिजिटल मीडिया आज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मीडिया है जिससे कि कोई भी खिलाड़ी आज घर बैठे सीख सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको, और बिना किसी टाइम लिए हुए हम ट्राई करेंगे स्टार्ट करने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेयर स्क्रीन करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम के ई लर्निंग वेबिनार सीरीज से, और पहला जो हम बात करना चाहेंगे वो हम मेंटल टफनेस की बात करना चाहेंगे। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम सिल्वर मेडल जीत लेते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हम लोग गोल्ड मेडल से हमेशा दूर रह जाते हैं। अगर ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत फर्क है। ओलंपिक में क्या होता है, हमें पूरा वर्ल्ड, पूरा नेशन, पूरे 21 दिनों के लिए उन लोग सब जुड़े रहते हैं अपने टीवी स्क्रीन से। तो एक जो मेंटल प्रेशर होता है एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है बनस्पत एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के, एक एशियन चैंपियनशिप के। तो मेरा पहला जो चीज हम बात करना चाहेंगे वो हम चाहेंगे मेंटल
ट्रेनिंग के ऊपर, मेंटल टफनेस के ऊपर, क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम अपना जहां तक 3 जो प्रकार के होते हैं चीज, अगर हम किसी भी गेम को देखें, वो होता है मेंटल, फिजिकल और उसके साथ साथ टेक्निकल। तो मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल जो होता है, इन तीनों चीज को अगर जब तक हम तीनों को मिलाएंगे नहीं, तब तक नहीं पॉसिबल है कि हम जीत पाएंगे। तो अगर हम टोक्यो मेडल को देखें, टोक्यो मेडल में अगर आप देखिए एक बहुत बड़ा चीज बोला गया है, एथलीट्स हैव टू स्ट्राइव फॉर विक्ट्री ऑन अ डेली बेसिस। ये क्या दर्शाता है कि अगर हम चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर हम वर्ल्ड में ओलंपिक्स में मेडल जीतना चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या डेली जीत रहे हैं। अगर हमारा मानसिक, जब तक हम अपने कोचेस को ये नहीं बताएंगे कि हर दिन हम जीत सकते हैं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, तब तक हम विश्व में पदक जीत नहीं सकते। क्या है कि हम कैसे मेरे लिए हर एक टूर्नामेंट उतना ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और हर टूर्नामेंट मेरे लिए जब तक हम जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है, यहाँ फिजिकल और टेक्निकल का सवाल है, जब आप ओलंपिक में पहुंचते हैं तो सभी प्लेयर्स एक बराबर होते हैं, 19 या 20 रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि हम कैसे माइंड को, अगर हम माइंड को ट्रेन कर पाए, मेंटल इंप्रूवमेंट कर पाए, तो बहुत ही हम अच्छा कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल ट्रेनिंग तो डिफरेंशिएटर है, विनर्स एंड लूजर्स में अगर कोई डिफरेंशिएटर है वो मेंटल ट्रेनिंग। तो मेंटल ट्रेनिंग के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम जब कोचिंग करते हैं, हम कोचेस को ये चीज को बाद में ध्यान रखना पड़ेगा कि कोचेस जब कोचिंग करते हैं, क्या वो इकोसिस्टम रखिए। और जब हम इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें 3 चीज आता है, मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल सपोर्ट। मेंटल सपोर्ट कौन देता है, हमें साइकोलॉजिस्ट देते हैं, मेंटल ट्रेनर देते हैं। फिजिकल सपोर्ट कौन देता है, हमें फिजिकल ट्रेनर देते हैं, कोच देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं, मैसोस देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं। हमें टेक्निकल का अगर हम देखें तो उसका सपोर्ट कोचेस देते हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट देते हैं, डेटा एनालिस्ट देते हैं, वीडियो एनालिस्ट देते हैं। जब हम सबका सपोर्ट लेके बढ़ते हैं तो हम पदक जीतने में ज्यादा, मेरा संभावना ज्यादा रहेगा। इसीलिए मेरा टोटल आज का जो प्रोग्राम है, हमने सबसे पहला चुना है मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर साइकोलॉजिस्ट और मेंटल ट्रेनर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम पदक से वंचित हो जाएंगे। मेंटल ट्रेनिंग क्यों हम बोलते हैं, हम आपको एक छोटा सा दोहा पढ़ना चाहेंगे जो हमारे पुराने सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट तमाम, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अगर आपने इतिहास देखा होगा, चंद भाई जो मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के, जब मोहम्मद गजनी ने वो देखने के लिए बुलाया चौहान साहब को कि भाई आप अपना कला का प्रदर्शन करें, तो उनके दोस्त ने उस समय उनके आंख पे पट्टी बांधा था और उसमें उन्होंने ये दोहा पढ़ा, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तीर से मोहम्मद गजनी को मार गिराया। तो ये बताता है कि जो मानसिक संतुलन है, आंख बंद करके भी आप दूरी को नापना, ये हमारे प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मेंटल ट्रेनिंग आज का नहीं है, हमारे योगिक एक्सपर्ट्स बहुत पुरातन काल में है, हमारे इतने एक्सपर्ट। संजीव जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपकी स्क्रीन पे कुछ ये क्या डिलीट किया हुआ सारा कुछ, देखिए क्या हो रहा है ये, नथिंग कैन बी रेड। कोई स्क्रीन को यूज कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी लोग हैं वो देखिए, कोई स्क्रीन्स को मतलब जो बोलते हैं ना बीच में जो एरर्स आते हैं, जो आजकल जूम के सेशंस में ये नया प्रॉब्लम आया है कि बहुत लोग हाईजैक करके उसको स्पॉइल करना चाहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जूम का सर। तो ये चीज जरा आप देखिए कि कैसे जूम वाले इस चीज को कोई भी किसी स्क्रीन पे नहीं पाए। I request nobody else should use his screen, please. Nobody else should use the screen. Yes, now it's clear. Now it's clear. Yeah. नहीं, अगर फिर अभी यूज कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्क्रीन पे नक्शा या कुछ लिखे नहीं। अरे फिर शुरू हो गया। Nobody except Sanjeev Kumar Singh साहब will use his screen, please. Nobody should use the screen. बस, thank you. Thank you. तो अब हम दर्शाना चाहेंगे आपको क्यों हम मेंटल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हम लोग के 2019 में सर इंडिया टीम ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की थी। हमारे 3 आर्चर्स थे, तरुणदीप राय, हमारे पास अतानु दास और प्रवीण जाधव। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का, लेकिन हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। आपको बताना चाहेंगे, आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम एक आपके पास वीडियो प्ले करेंगे। वीडियो में आप कृपया देखें कि कैसे चाइनीज आर्चर्स चला रहे हैं, कैसे हमारे आर्चर चला रहे हैं। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि जब मानसिक, जब प्रेशर पड़ता है किसी आर्चर के ऊपर कैसे करता है, और उसी बारे में मेंटल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इंडियन टीम में देखे तरुणदीप राय 36 साल के थे,
अतानु दास 26 साल के थे, जादव जी 18 साल के थे। हमारा एवरेज एज था 26 साल। एक्सपीरियंस में देखे 20 साल का एक्सपीरियंस था आपका तरुणदीप राय का, 15 साल का एक्सपीरियंस था आपका अतानु दास का, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जादव जी का था। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमला रफली 15 साल का एक्सपीरियंस था एवरेज टीम का। वहीं पे हम चाइना को देखे, चाइना में जो आर्चर्स थे, 2 आर्चर्स 18 साल के थे, सिर्फ उनको 1 साल का एक्सपीरियंस था। एक आर्चर 23 साल का था जिसको सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस था। एवरेज एज था 20 साल, एक्सपीरियंस 3 साल। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इंडिया हर हालत में फेवरेट था चाइनीज के ऊपर, और उनको जीतने की पूरी संभावना थी गोल्ड मेडल। क्यों नहीं जीत पाए ये अब आपको वीडियो में दिखाएगा, ध्यान से देखें, और कमेंटेटर क्या बोलता है उस पर भी आप काइंडली ध्यान दें। आप देख रहे हैं अतानु दास को चलाते हुए, अभी आपने देखा वो फ्लिंच किए। Used up bags of time there, but recovered from a massive wobble. So he just lost back tension there, but he tried to pull it back again, and he made the most of the shot. But he's eaten up a lot of the time. Again, somebody is using his screen. Only Sanjeev ji's screen will be shown. This is a long hold as well. And he's salvaged a 9 out of that. They are nervous, the Indians. They can't over. हम फिर से दोबारा शेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फिर से कीजिए। हाँ जी, लोग नहीं इसको यूज करें प्लीज। हाँ जी। अब आप देखिए वीडियो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अतानु दास पहला शूट कर रहे हैं तीर को, आप देखिए ध्यान से। आपने देखा उन्होंने फ्लिंच किया। Used up bags of time there, but recovered from a massive wobble. So he just lost back tension there, but he tried to pull it back again, and he made the most of the shot. But he's eaten up a lot of the time. And this is a long hold as well. No, he's salvaged a 9 out of that. They are nervous, the Indians. They can't overthink it. They need to just stick to their shots that they always shoot and repeat it even in competition here. Great shot from Rai. So nervy moments, but a 28 out of 30 is a good score. We switch over to the other side of the shooting line and see how China respond. They just have to match the Indian score to take the world title. So much confidence. He's just shot 4 10s in a row, and I think he's very, very happy with his shooting. That's a 10 from Ding. They've got the mini lead to the delight of the supporters in the crowd. Back to Jadav and India. It's a long hold. Time is going to play a big factor in these last 3 arrows for India. They're nearly down to 30 seconds for 2 arrows. Confidence. Rai's got to get this one out quickly. And he does, but it's another 8. He has given Das a full 20 seconds though. Really could do with a 10 here. 4, 3, 2, 1. Just तो आपने देखा इस जो 2 मिनट का आपको इसलिए दिखाना चाहते थे क्योंकि
फैक्ट एंड फिगर्स डोंट लाइस। आप सभी कोचेस को बताना चाहेंगे, जब आपने देखा चाइना जो हमसे कम एक्सपीरियंस से कम हमारा से नॉलेज था, वो तीनों ही आर्चर्स का बो हैंड बहुत स्ट्रांग था, टाइमिंग बहुत अच्छा था और बिल्कुल रिपीट किया। हम लोग ने 29 वर्सेस 28 मारा था, तरुणदीप ने ऑलरेडी 10 मार लिया था। दैट मींस हमारे पास कैपेबिलिटीज थी 9 और 10 मारने की। लेकिन जो लास्ट 3 एरो में देखा आपने, अतानु दास ने फ्लिंच किया, फिर उसने रिकवर किया, जादव जी ने ज्यादा टाइम लिया और तरुणदीप का बो हैंड मूव किया, जिसकी वजह से लास्ट तीनों एरो 8 में गए। मेरा सिर्फ एक ही बताना है इस चीज से फ्रेंड्स, हमारे पास टैलेंट है, हमारी टीम इज वेरी स्ट्रांग फिजिकली एंड टेक्निकली। सिर्फ जो जरूरत है, जब हमें पीक परफॉर्मेंस जब हम करना होता है, ओलंपिक में भाग लेना होता है, सबसे जरूरी चीज है हमारा मानसिक संतुलन। अगर हम अपने कॉन्सेंट्रेट करेंगे आउटकम को छोड़ के सिर्फ अपने प्रोसेस के ऊपर, अपने शॉट के ऊपर, तो हर एक 10 मार सकते हैं। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल टफनेस जो है वही विनर्स और लूजर्स के बीच में डिफरेंस बताता है। आर्चरी एक मेंटल स्पोर्ट है, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, हम 10 में मारे। दूसरा प्रोसेस क्या है, 10 को रिपीट करें, सिंपल सा चीज। और मेंटल टफनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक एबिलिटी है जो आपको इस जोन में ले जाता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और तभी आप अचीव पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एडवर्स सिचुएशन में भी मेंटल ट्रेनिंग के जरिए आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो जहां तक मेंटल ट्रेनिंग की सवाल है, हम बहुत सिंपली 3 तरीके में कर सकते हैं। पहला चीज होता है रिलैक्सेशन कराना, बॉडी को हम कैसे रिलैक्स करते हैं। दूसरा चीज है माइंडफुलनेस, हम माइंड से कैसे अपने डिफरेंट थॉट्स को निकाल पाते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है विजुअल इमेजिनी। तो अगर हम देखते हैं रॉजर फेडरर जो थे हमारे, इतने सारे उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, वो क्या कहते हैं मेंटल ट्रेनिंग के बारे में? Upon a time I took a decision that I was just going to be more focused and get my mind right when it really mattered. It took me a long time, but I'm very proud that I was able to achieve that. And today my mind is one of my strong points when I play tennis. आपने रॉजर फेडरर को देखा जो कि बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते थे। उन्होंने क्या बोला, हम अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश किए, हम माइंड को ट्रेन करने की कोशिश किए। आज मेरा माइंड सबसे बड़ा वेपन है जब हम खेलने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना मेंटल ट्रेनिंग के हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। टेक्निकली फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बट ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए माइंड ट्रेनिंग, मेंटल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों ये बोलना चाहते हैं, देखते हैं कि अगर मेरे आर्चर जब फील्ड में खड़े होते हैं, क्या चीज है जो दर्शाता है कि उनका मानसिक जो संतुलन है और अच्छा क्यों नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमें नर्वस फील होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बहुत बार देखते हैं कोई स्पोर्ट्समैन बहुत एंग्री आउटबर्स्ट करता है, बहुत बार हम देखते हैं बहुत जल्दी वो हार मान जाता है, कभी कभी वो फोकस करने में उसको डिफिकल्टी होती है, कभी कभी वो स्टार्ट करता है 27 से, फिनिश करता है 27, फिर लगातार 30 मारता है बीच में। दूसरी बार है, अगर मेरा कोच और पेरेंट की वजह से हम प्रेशर में आ रहे हैं, हमें अपना बहुत रेपुटेशन, हम नंबर 1 है इंडिया के, तो हमें लगता है कि हम हमेशा नंबर 1 रहे। कंपटीशन परफॉर्मेंस में मेरा परफॉर्मेंस प्रैक्टिस की बनस्पत कम हो जाता है। हमें विनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। वो एटीट्यूड अगर मेरा बन जाता है तो ज्यादा हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लैक ऑफ एबिलिटी टू बाउंस बैक, क्योंकि कभी कभी हम हो सकता है जब हमने अपना रैंकिंग राउंड में मेरा स्कोर कम हो, हम 6th प्लेस पे आ गए, लेकिन क्या हम बाउंस बैक करके फर्स्ट आ सकते हैं? दूसरा, हमें फियर ऑफ कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जब तक हमें ये सिम्टम्स नजर आएंगे अपने आर्चर्स के अंदर में, ये आप मान लीजिए कि वो ओलंपिक पदक से दूर रहेंगे। ओलंपिक पदक पाने के लिए बहुत जरूरी है ये जितने सिम्टम्स हमने बताए, इन सिम्टम्स के आप काबू पा पाए। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इमोशनल ट्रॉमा ऑफ एन आर्चर। आर्चर क्या करता है, पहले वो कंपटीशन के बारे में सोचना शुरू करता है, उसको लगता है हमें कोई जज कर रहा है, मेरे पेरेंट जज कर रहे हैं, मेरी कंपनी जज कर रही है, मेरे दोस्त जज कर रहे हैं, लोग जज कर रहे हैं। जहां वो लोग के जजमेंट के बारे में सोचने लगता है, वो पॉइंट बी पे चला जाता है, जिसे बोलते हैं फ्यूचर थॉट्स, कि आप आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं, लोगों के बारे में सोचने लगते हैं बनस्पत अपने आर्चरी के बारे में। उससे क्या होता है, आप पॉइंट सी पे जाते हैं, सी में नर्वसनेस आता है, एंग्जाइटी आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, और वो जब इमोशनल स्ट्रेस आता है वो पॉइंट डी के तरफ ले जाता है। पॉइंट डी क्या है, जब आप एरो चलाते हैं और पहला एरो आपका 8 में लगा या 7 में लगा या 9 में लगा, तो आप ये सोचने लगते हैं, अरे हमने क्या हो गया, 9 मार दिया, अब हम कैसे इंप्रूव करेंगे हमें। तो वो अपना नेगेटिव के बारे में सोचने लगता है बनस्पत की, वेल अगर हमने 9 मारा, चलो नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे, हम अपना ध्यान देंगे टाइटनेस के ऊपर में, ध्यान देंगे
वो प्रेशर के ऊपर में ध्यान देंगे, बैक टेंशन के ऊपर में, टाइमिंग के ऊपर में। तो अगर वो प्रोसेस से हट के अपने एरो के बारे में, आउटकम में सोचने लगता है, उससे उसका फ्रस्ट्रेशन आता है और वो पॉइंट ई पे पहुंच जाता है जहां पे उसको एंगर आता है। तो अगर एंगर आ गया गेम में तो वहीं पे गेम आपका खत्म हो जाता है। तो ये पांचों जो विशियस सर्किल इसको बोलते हैं आर्चर्स का, कि जब वो जजमेंटल होता है, जब वो कंपटीशन के बारे में सोचने लगता है, वो उसको धीमे धीमे फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिज्म के लिए जाता है। तो इस चीज से हमें बहुत दूर रहना है। इसलिए प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन क्या है, सिंपल तरीके में बताएं। आप कहीं पे भी बैठ जाए, अपने आर्चर्स को बैठाएं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, वो शुरू में लेट सकते हैं और मसल्स ग्रुप को टाइटन करें और फिर रिलैक्स करें बेली ब्रीदिंग के थ्रू। तो वो अपने पैर से शुरू करते हैं और ऊपर सर तक लाते हैं। इस तरह से वो बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो बेड में करें, धीमे धीमे वो फील्ड में बैठ के कर सकते हैं, धीमे धीमे वो खड़े होके भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेन कर पाएंगे अपने माइंड को कि कैसे हम मसल्स को रिलैक्स कर पाए, तो आप बहुत बार पाएंगे कि पेन को भी दूर चला जाएगा, क्योंकि आप उस मसल्स को रिलैक्स करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो बात हमने बोला था माइंडफुलनेस का, माइंडफुलनेस क्या है, हमारे पास थॉट्स आते हैं माइंड में, अगर हम थॉट्स को पकड़ेंगे तो वो पकड़ के रह जाएगा, नहीं पकड़ने दीजिए। माइंड में थॉट आने दीजिए, माइंड में वो थॉट्स को जाने दीजिए। लेकिन क्या जरूरी है, क्या आप अपने थॉट्स को जान पा रहे हैं, क्या अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाइए, इसलिए बहुत जरूरी है, उसके लिए जानिए कि क्या थॉट्स है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बोलना चाहेंगे, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है, नास्टिया ल्यूकिन को देखिए, ओलंपिक में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पदक जिम्नास्ट में जीती थी। वो बोलती थी कि विजुअलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ट्रेनिंग में भी और कंपटीशन में भी। हम गोल सेट करते हैं और गोल को पाने के लिए विजुअलाइज करते हैं कि हम उस चीज को कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि जब वो विजुअलाइज करती है, वो हर एक तरीके से सोचती है कि कभी उनको चोट लग गया, उस चोट के बावजूद वो अपने को ट्रेन कर पा रही है, बैलेंस बीम पे कर पा रही है और परफॉर्म कर पा रही है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कर पा रही है। तो जब तक वो डिफरेंट परिस्थिति में माइंड को ट्रेन नहीं कर पाएंगी, तो वो जब एक्चुअली वो परिस्थिति हो गया जहां पे आपको विपरीत स्थिति पैदा होती है, तो आप उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे और परफॉर्मेंस खराब जाता है। विजुअलाइजेशन के बारे में देखते हैं कि बहुत सिंपल तरीका है। आप बैठ जाएं, पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड से आप थॉट्स को समझिए, निकलने दीजिए। तब आप क्या करेंगे, विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने एक परफेक्ट शॉट के ऊपर, आप अपने माइंड में देखिए आप कंपटीशन में लड़ रहे हैं। कंपटीशन में आप देखिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन से लड़ रहे होंगे, आप अपने टॉप प्लेयर से लड़ रहे होंगे, लेकिन आप हमेशा परफेक्ट शॉट मार रहे हैं और अपने को जीतते देखिए। आवाज सुनिए क्राउड को चीयर करते हुए, देखिए कि आप टाई ब्रेकर हुआ, टाई ब्रेकर में भी आपने एक्स मारा, आप जीते, आप पदक को पहनते हुए देखिए। जब आप मानसिक स्तर पे हर एक चैंपियनशिप के सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, टोक्यो ओलंपिक के सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि ब्रेड एलिसन के साथ आप लड़ रहे हैं और आप हमेशा 10 मार रहे हैं, हमेशा एक्स मार रहे हैं और आप जीत रहे हैं, तो जिस दिन आप पहुंचेंगे वो खेलने के लिए, आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप उसको हरा पाएंगे। तो देखते हैं ब्रेड एलिसन क्या बोलते हैं मेंटल ट्रेनिंग के बारे में। So when I'm mentally preparing for anything, whether it's training or going to a competition and even the Olympic Games, there's a lot of the same things that I do. One of the biggest ones that I do is mental imagery. And what I mean by mental imagery is picturing yourself overcoming obstacles in your head. What I mean by this is, say I'll go on the training field one day and I'll be sitting there and be like, all right, I want to shoot this type of score. Let's just say it's a 350 at 70 meters. Yeah, that's a world record. That's something that's going to be there. I'll try all day to shoot it. Maybe shoot 345, get close to it. And then that night I'll go back to the room and mentally I'll sit there and I'll shoot round after round after round, shooting 351, 353. It'll be windy, it'll be rainy. All different conditions, all different scenarios, but I'm constantly making those 36 good shots that it takes for me to shoot that 350. And what that's going to do is mentally and in my subconscious, I'm going to start becoming that person, and I'm going to start mentally thinking that I can shoot it. Therefore, physically, there's going to be adjustments that are going to be made and stuff like that that my brain's just going to do, and I'm going to start shooting those scores. आपने देखा जो ब्रेड एलिसन जो कि मेडलिस्ट है, ओलंपिक में मेडलिस्ट है, यूएसए के नंबर 1 को आर्चर है, उन्होंने क्या कहा, वो बोले दो चीज
कि हम जो मेरा स्कोर है मेरा 345 346 मारते हैं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 350 का है। तो हम क्या करते थे, हम पहले अपने माइंड को ट्रेन करते थे। हम रूम में आते हैं, हम देखते हैं कि हम 351 मार रहे हैं, 353 मान रहे हैं और अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, अपने को कॉन्फिडेंस जनरेट होता था। और जब वो नेक्स्ट डे जब जाते थे तो उन्होंने देखा कि उस समय जब वो अपने माइंड को क्योंकि ट्रेन कर चुके थे तो वो एक नया व्यक्तित्व उनके अंदर में आता था और वो उस चीज को पॉसिबल कर सकते थे। वो ये भी उन्होंने बताया कि ओलंपिक के लिए हम जब ट्रेन करते हैं हम अलग अलग विपरीत परिस्थिति देखते हैं कि पानी चल रहा है, तो वो चीज को देखते हैं और तब हम परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर पाए और यही चीज बताता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। हमने जब साइमन फेयरवेदर जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे, हमारा 1994 में हमारा फेडरेशन कप इंटरनेशनल मीट हो रहा था कैलकाटा में, वहां पे मेरी जो फाइट थी वो थी साइमन फेयरवेदर के अगेंस्ट। तो हमने क्या किया कि सुबह में 2 बजे मेरा टूर्नामेंट था, हम होटल में थे, होटल में हमने अपना वार्म अप किया, ब्रेकफास्ट किया, 9 से 12 बजे तक हम 3 घंटे फ्रेंड्स हमने लगातार माइंड में साइमन फेयरवेदर को बीट करते हुए देखा। हम लगातार देखे कि हम वो शूट कर रहा है, वो भी 10 मार रहा है, हम भी 10 मार रहे हैं, लेकिन मेरा जो 10 है वो क्लोजेस्ट टू द सेंटर है। लगातार 3 घंटे तक माइंड को ट्रेन किया। 12 बजे के बाद हमने खाना खाया, बस में बढ़ के हम पहुंचे, 1 बजे 1:30 बजे तक वार्म अप करके हम फील्ड में रेडी हो गए। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ हम दोनों ने बहुत अच्छा शूट किया, टाई ब्रेकर हुआ, टाई ब्रेकर का लास्ट एरो का शूट था, क्लोजेस्ट टू द सेंटर जीतेगा, हम दोनों ने 10 मारा, मेरा 10 क्लोजेस्ट टू द सेंटर था और हम जीत गए। वर्ल्ड चैंपियन को हमने कभी हराया नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया के ग्राउंड पे हमने वर्ल्ड चैंपियन साइमन फेयरवेदर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे सिडनी के, उनको हराया। क्यों हराया? क्योंकि हमने मन में पहले ही जीत गए थे उससे। हमने मन में पहले ही बोला था कि नहीं साइमन फेयरवेदर वर्ल्ड चैंपियन है लेकिन हम कम नहीं है। हमने माइंड को बताया कि हम जीत सकते हैं, हमने माइंड को बताया हमें नर्वस नहीं होना है, माइंड को बताया हमें पॉजिटिव रहना है, हमने बहुत मेहनत किया है और ये मानसिक स्तर की वजह से हमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो ये हमने अपने लाइफ में देखा है कि पॉसिबल है और ये आप भी कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो आप सभी कर सकते हैं जो हमसे भी अच्छे आर्चर्स हैं। अब हम देखते हैं कि मेंटल टफनेस के लिए क्या 5 चीज की जरूरत है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में 10% ही स्पोर्ट्समैन है, आर्चर्स हैं जो कि मेंटली प्रिपेयर करते हैं। मेंटल प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है 5 एट्रीब्यूट चाहिए किसी भी प्लेयर के अंदर में। वो 5 एट्रीब्यूट क्या है? मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फोकस, केयरफ्री एंड काम। माइकल जॉर्डन जो वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स है, उनसे सुनते हैं वो क्या बोलते हैं मेंटल ट्रेनिंग के बारे में। My mental preparations for the game are very different than most. I try to relax myself. I'm a jokester, a prankster, if you want to say it that way. I listen to music, I joke around with the guys, I take my whole mind away from the game itself, and then when the time comes to focus on the game, I focus on my athletic skills and putting it together with the team, and somehow collectively going out and doing our jobs each and every day. I challenge myself to be the best basketball player every moment that I'm playing the game of basketball. And sometimes that means tricking yourself in your mind to say that you can't do this or your weaknesses are here, but yet you still try to work on improving those weaknesses. A lot of people may say, well, Michael Jordan never had weaknesses. Michael Jordan had weaknesses. He just had to dig deep inside himself to figure out what they were and challenge himself to improve those weaknesses. So mentally, I like to challenge myself to go out and play a perfect basketball game. Although I know you can't do that. It's practically impossible to play a perfect game, but that doesn't mean you can't challenge yourself to do that. आपने देखा माइकल जॉर्डन ने क्या बोला? माइकल जॉर्डन ने बोला कि पहले वो हंसते हैं, एक जोकर की तरह रहते हैं, वो ट्राई करते हैं लोगों से जोक करना, वो ट्राई करते हैं सीरियस नहीं होने का, बिफोर द कंपटीशन रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन जब कंपटीशन आता है वो ये चैलेंज अपने को करना चाहते हैं, हर बार वो अपने को चैलेंज करते हैं कि हम परफेक्ट मैच करेंगे। उनके माइंड में उनको पता है कि परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन उनका माइंड हारता नहीं है। वो हर बार माइंड को बोलते हैं कि हम चैलेंज करेंगे, हम और अच्छा करेंगे, और इसलिए वो वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स यही हम बताना चाहेंगे, माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल। माइंड से ही आप ओलंपिक जीत पाएंगे। आप फिजिकल और टेक्निकल में सब बराबर हैं, लेकिन माइंड आपको ओलंपिक में पदक जिला पाएगा। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन तभी होगा, एक प्लेयर के अंदर में मोटिवेशन जो होता है इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ कि इंटरनल होता है। इंटरनल मोटिवेशन तभी होगा जब आप जो गोल्स हैं, आप गोल सेट कर पाएंगे जो एस्पिरेशनल हो। हम जब ड्रीम करते हैं फ्रेंड्स, ड्रीम उनको कहा जाता है जो आपको सोने नहीं दे।
तो आपके गोल्स अगर ओलंपिक टोक्यो में मेडल जीतना है या 24 में जीतना है या 28 में जीतना है, तो वो एस्पिरेशनल गोल हो गया। वो गोल तब तक गोल नहीं रहेगा जब तक मेरे पास एक रोड मैप नहीं हो, एक टाइमलाइन नहीं हो। हमें एक टाइमलाइन बनाना होगा, कब हम क्या अचीव करेंगे जिससे हम अपने को शाबाशी दे पाए, एक हमारा मन मोटिवेटेड हो रहा है कि चलो अब हमने ये अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट हमें अचीव करना है। तो ये डेली गोल्स जो हैं हर एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनाता है। अब हम बोलेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रोड मैप जो हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल आप देने चाहेंगे कि खेलो इंडिया प्लेयर अगर सपोज एक बनना चाहता है, क्योंकि आजकल खेलो इंडिया बहुत पॉपुलर हो गया है, हर एक आर्चर, हर एक स्पोर्ट्समैन खेलो इंडिया में आना चाहता है, उसको 5 लाख रुपीज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ट्रेनिंग की सहूलियत मिलती है। तो ऐसा अगर बनना चाहे तो रोड मैप मेरा 28 ओलंपिक के लिए क्या होगा? 16 साल की उम्र में हम पहला चीज चाहेंगे हम स्टेट चैंपियन बने। दूसरा मेरा क्या होगा? 2020 हो गया। नेक्स्ट ईयर जब 17 साल के होंगे हम कोशिश करेंगे हम जूनियर नेशनल चैंपियन बने और खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो और हम 2021 में पहुंच गए। 18 साल की उम्र में हम टॉप 12 इंडिया में आना चाहेंगे, जो 2022 का समय आ गया। 19 साल की उम्र में हम टॉप 6 में आएंगे सीनियर नेशनल्स के, और हम अपना 2023 हो गया। 20 में जब मेरा ओलंपिक आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि टॉप इंडिया के टीम में आए और ओलंपिक में हम 10 में आए, और ये 2024 हो गया। आप सोच रहे होंगे क्यों हमने बोला ओलंपिक नहीं जीतने को? हिस्ट्री और रिसर्च ये प्रूफ किया है फ्रेंड्स, जब तक हमें कम से कम 4 साल लगता है एशियन लेवल पे आने पे, 6 साल लगता है वर्ल्ड लेवल पे आने पे, और उसके बाद हम ओलंपिक लेवल पे आते हैं। तो इसलिए 21 साल की उम्र में हम ट्राई करेंगे कि टॉप 6 में आए वर्ल्ड चैंपियनशिप के। 22 साल की उम्र में मेरी कोशिश रहेगी कि पहला पदक हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 2026 में। 23 साल की उम्र में हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ल्ड कप में हम पदक जीते, वर्ल्ड रैंकिंग में हम टॉप 3 में रहे, ये 2027 का रहेगा। और 24 साल की उम्र में मेडल हमने पहला मेडल अपने भारत को दिलाएंगे 2028 के। आप सब सोच रहे होंगे कि 8 साल का हमने प्रोग्राम बना दिया, बहुत इजी प्रोग्राम बना दिया, बट फ्रेंड्स हमने टाटा आर्चरी एकेडमी में देखा है जितने हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो जयंत तालुकदार हो, चाहे वो राहुल बनर्जी हो, चाहे वो हमारा अतानु दास होगा, चाहे दीपिका कुमारी होगी, चाहे अंकिता है, चाहे हमारी चकवुल सोरू, रीना कुमारी, जितने भी प्लेयर्स निकले टाटा अकेडमी से, सभी प्लेयर्स को 4 साल लग गए थे एशियन लेवल पे आने पे, 6 साल लगे वर्ल्ड लेवल पे आने पे, और आज 10 साल से ऊपर हो गया, ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए। इसलिए नहीं जीत पाए कि उनके अंदर काबिलियत की कमी है, इसलिए नहीं जीत पाए कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं जीत पाए कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट दे रहा है, एसोसिएशन हर तरह से सपोर्ट दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट अपना है। अपना का मतलब मेंटल ट्रेनिंग, मतलब मानसिक संतुलन बनाना, अपने का मतलब पॉजिटिव रहना। देखते हैं आगे क्यों हम ये बोल रहे हैं। आती है बात कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल की। हर एक आर्चर जब वो फील्ड में उतरता है कंपटीशन में, 2 तरीके से ख्याल आ सकते हैं। एक कंट्रोलेबल जो हो सकता है पॉजिटिव थॉट्स, दूसरा होता है आइडियल इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच, एनर्जी, एफर्ट, ये सब जो होते हैं कंट्रोलेबल थॉट्स हैं। नॉन कंट्रोलेबल क्या होते हैं? जब हम अपोनेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, फील्ड अच्छा नहीं है, पानी है कहीं पे, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, हमें कितना जरूरी है जीतने के लिए, वेदर खराब हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कोच क्या बोलेगा, मेरा रैंकिंग स्लिप करेगा, लोग क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दे, कोचेज जब भी आप प्लेयर को ट्रेन कीजिए हमेशा उनको बताइए नॉन कंट्रोलेबल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। नॉन कंट्रोलेबल क्या होता है? अगर परसेप्शन दिमाग में आ गया वो रियलिटी बन जाती है, तो वो नेगेटिविज्म की तरह जाता है। जो हमने आपको बताया इमोशनल ट्रॉमा, वो आपको नेगेटिव बनाएगा और आप पदक से वंचित रह जाएंगे। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएगा, कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप कंट्रोलेबल की तरफ ध्यान दें। हम अपने बारे में लाइफ में 2 एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। 1888 हमारा नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, हम कलकत्ता में थे। कलकत्ता में क्या हुआ कि मेरा जो तकिया, जहां पे हम लोग का जो डॉर्मेट्री में सोने को मिला था, वहां पे जो तकिया मिला था थोड़ा हार्ड था, हम उस पे सोए रात में। जब मॉर्निंग में उठे हमें राई नेक बोलते हैं, राई नेक हो गया। मेरा जो नेक था वो मुड़ ही नहीं रहा था। अब जब मुड़ नहीं रहा था, आप सब आर्चर्स को पता होगा कि जब हम शूट करते हैं हमें नेक को मोड़ना पड़ता है और तभी हम शूट कर पाते हैं। अब आप सोचिए, माइंड में हमने उस दिन मेंटल ट्रेनिंग किया, हमने सोचा कि मेरा मुंह तो नहीं मुड़ रहा है, लेकिन हम देखते रहे कि नहीं मेरा मुड़ रहा है। हम हमेशा देखिए जब हम शूट कर रहे हैं हम आराम से मोड़ पा रहे हैं और आराम से शूट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स पेन था मेरे नेक में, नेक नहीं मुड़ रहा था। पूरा 144 एरोज 3 दिन हमने चलाया, हमने वहां पे मेडल जीता, गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता, डिफरेंट डिस्टेंस पे। क्यों जीता? क्योंकि माइंड ने ये बोला कि तुम्हारा राइट नेक कुछ नहीं है, तुम जीत सकते हो।
दूसरा हम बताते एग्जाम्पल, फिर से मेरा एक नेशनल चैंपियनशिप था, मेरा शोल्डर पेन आ गया, शोल्डर मेरा उठ ही नहीं रहा था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, या तो नेशनल छोड़ दे या नेशनल खेले। 2 दिन, उस समय कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं था, हमें कुछ इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम 1990 की बात कर रहे हैं, आज से 30 से 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया, 2 दिन रिलैक्स किया, माइंड में हमने ट्रेन किया अपने माइंड को कि हम आराम से शोल्डर उठा पा रहे हैं, हम आराम से खींच पा रहे हैं, आराम से चला पा रहे हैं। मेरे साथ टूर्नामेंट में कौन थे? लिम्बाराम थे, श्यामलाल थे, उस समय यही 3 लोग थे हम लोग जो जीतते थे। बीच बीच में कभी धूलचंद आ जाता था, कभी कालरंग दोरजी आता था, हम 5 के बीच में पदक बढ़ता था। हमने चैंपियनशिप शुरू हुई, हमें पेन था, बुरी तरह पेन था मेरा शोल्डर में, उठ नहीं पा रहा था, लेकिन हम आराम से उठाए, शूट किए, पूरा 144 एरोज मारे, 3 दिन कंपटीशन किए और तो भी पदक जीता। क्यों जीता फ्रेंड्स? क्योंकि हमने नॉन कंट्रोलेबल के बारे में नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा मेरा शोल्डर नहीं उठ रहा है, हमने ये नहीं सोचा कि मेरा मुंह नहीं मुड़ रहा है, और लेकिन हमने क्या सोचा, हम करेंगे, हम मारेंगे, हम करके दिखाएंगे। वो चीज का तमन्ना, माइंड जो है वो इतना स्ट्रांग था कि दोनों ही सिचुएशन में जहां पे फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर बोलते ये शूट नहीं कर पाएगा, उसके बावजूद हमने शूट करके दिखाया, उसके बावजूद हमने पदक दिखाया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो बहुत चीज है दिमाग के अंदर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये आपने शब्द सुने होंगे, आप जानते होंगे। जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम परफेक्ट होंगे। हमने हमेशा देखा है कि अगर अतानु दास लगातार प्रैक्टिस में 340 और 342 मार रहा है, तो वो क्या करता है, वो कंपटीशन में और ट्रायल्स में भी 342 340। अगर तरुणदीप 341 मार रहा है तो कंपटीशन में भी 341 मार पाता है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आ जाता है कि वो कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को ये ध्यान देना, माइंड को ट्रेन करना कि जब हम प्रैक्टिस में अच्छा करेंगे अपने आप हमारा परफॉर्म अच्छा। तो इसलिए हमने पहले क्या बताया था, विक्ट्री एवरी दिन करना है, विक्ट्री डेली करना है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, हमारा फाइनल गोल्ड मेडल का मैच अलग जगह पे होता है। वहां पे आप देखेंगे टीवी कैमरा रहता है, आपको बोला जाता है एंटर करते हुए, आपका नाम अनाउंस करते हैं, कमेंट्री हो रही है, लोग बोल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उसके बीच में आपको परफॉर्मेंस को, माइंड को ट्रेन करके खेलना है। तो उस समय आपका जो कैसे आप खड़े होते हैं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपने वार्म अप अच्छा किया, क्या आप पास सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप सक्सेस जर्नल डायरी लिखते हैं जहां पे अपने सक्सेस के बारे में लिखते हैं, क्या आपने को विजुअलाइज किया उस जगह पे जहां पे फाइनल वर्ल्ड कप होने वाला है, उस जगह को माइंड में बैठा के ट्रेन किया। जब आप फील्ड में उतरते हैं क्या आप पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट है, आपके फेस से डर जाता है कॉम्पिटिटर, फेशियल एक्सप्रेशन हंसते हुए होना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, फोकस कंट्रोलेबल के ऊपर होना चाहिए। पर्सनल हाईलाइट अगर आपके हैं देखिए, एक दिन पहले एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ब्रीदिंग कीजिए और अपने पॉजिटिव हैबिट डेवलप कीजिए। अगर ये आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर में आएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना फोकस के आप कभी भी, तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसमें मानसिक संतुलन की बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल, मानसिक एंड टेक्निकल तीनों ही संतुलन एक मोमेंट पे होने चाहिए। जब आप रिलीज करते हैं उस समय पूरी फोकस आपकी शॉट के ऊपर रहती है, अपने फीलिंग्स के ऊपर रहती है। 5 तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, हर एक टूर्नामेंट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, एशियन हो, कॉन्वेस्ट हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, आपके लिए बराबर है। माइंड जब बोलेगा कि मेरे लिए एवरी टूर्नामेंट इज ओलंपिक टूर्नामेंट, तब आप हर टूर्नामेंट को उतने ही सीरियसली लेंगे जैसे, तो आपके लिए कोई भी नर्वसनेस नहीं आएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेले, चाहे वो आप ओलंपिक गेम खेले। तो पहला चीज है माइंड को मिनिमाइज कीजिए, मेरे लिए सभी चैंपियनशिप बराबर है, हर चैंपियनशिप में हमें जीतने की कोशिश करना है, जीतने का नहीं करना है, आपको माइंड को बोलना है हमें परफेक्ट शॉट मारना है। दूसरा पार्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जब कभी कॉम्पिटिटर के साथ खेल रहे हैं, अगर एरो 8 में लगा, आप बोलेंगे जब भी हम अच्छे कॉम्पिटिटर से खेलते हैं हम 8 में मारते हैं। दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा कि जब भी हम खेलेंगे हम हमेशा, अगर 8 में चला गया कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे 10 में मारने का। तो आपने माइंड को पॉजिटिव बना दिया। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे कोई आप बनाए नहीं, एक्शन मत कीजिए, उससे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, स्क्रीन दिखेगा नहीं लोगों को। Sir, Sanjeeva sir, sorry. Hello, sir. जी.
you have to click more, then drop down disable attendee annotation. You have to do it from there. Disable Then participants annotation. Yes. Otherwise, Thank I you. cannot control this. Okay, sir. Thank you. Thank you. तो अगर आप देखते हैं मैटर फॉर फैक्ट रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे हम कभी भी अपने को नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाए, अगर हम बोलेंगे हमने एरो 8 में मारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 10 में मारेंगे, अपने शॉट पे ध्यान देंगे, आप मार पाएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं हम हमेशा टफ कॉम्पिटिशन से 8 मारेंगे, आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा चीज होता है ऑप्टिमिस्ट होना। फोकस के लिए बहुत जरूरी है कि आप कैसे ऑप्टिमिस्ट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमेशा अच्छा चीज के बारे में सोचिए। जब आप अच्छे बारे में सोचेंगे आप हमेशा अच्छा होगा। हम अच्छा 10 मारे क्योंकि हम अच्छे प्लेयर हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उस चीज पे ध्यान दें कि कैसे हम और अच्छा शूट कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कैसे ऑप्टिमिस्ट रहेंगे। जितने बारे में आप अपने को बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छा शूट कर रहे हैं, हम अच्छे टेक्निक चला रहे हैं, आप हमेशा अच्छा कर पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पे आप ध्यान दें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेजिंग पॉजिटिवली। जब आप बात करते हैं कोच से, जब आप बात करते हैं टीवी स्क्रीन से, जब बात करते हैं किसी से भी, आपका हमेशा ये होना चाहिए कि हम एक्स में मारेंगे। दूसरा आप बोल सकते हैं कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम कोई मिस नहीं करें एक्स में या 10 में मारना। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप बोलेंगे कि मिस नहीं करेंगे 10 में मारना है, माइंड मिस को परसीव करता है और आप एरो बाहर मारेंगे, आप 10 और 9 मारेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं हमेशा हम एक्स मारेंगे क्योंकि हम शॉट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर ऐसे करने पे एक्स होगा तो आप हमेशा एक्स मार पाएंगे। पांचवा जो चीज है, जो सबसे बड़ा चीज है, वो होता है आई कैन एंड कैन आई। ये बहुत ही दो वर्ड है, कैन के पहले आई लगाना या कैन के बाद आई लगाना। जब आप आई कैन बोलते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा अच्छा करते हैं। और जब आई कैन नहीं, जब आप कैन आई बोलते हैं तो डाउट लाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि मन में डाउट नहीं होना चाहिए। और मन में अगर डाउट नहीं होगा तब आप उसके लिए क्या बोलना चाहिए, आप ऐसे बोलिए अपने आप को कि एज लॉन्ग एज आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बैक प्रेशर या टाइमिंग या ड्रॉ या टाइटनेस, आई विल शूट एन एक्स। तब आप माइंड को ये बोल रहे हैं कि अगर हम कभी भी ऐसा हम काम करेंगे, अपने शॉट पे ध्यान रखेंगे तो हम 10 मार पाएंगे, तो आप हमेशा 10 मारेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस लाना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केयर फ्री, कि आप कैसे अपने आप को काम और केयर फ्री रख सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप आउटकम के बारे में मत सोचिए। आपको बताया था माइंडफुल के बारे में, व्हाट इज माइंडफुल। अगर आप सोचते हैं आउटकम के बारे में कि नहीं हमें 350 मारना है, 304 मारना, हमने अगले शॉट 10 मारना है, तो वो गलत होगा। आपको ये सोचना है कि अगले शॉट को हमें परफेक्ट शॉट मारना है, अगले शॉट में हमें अपने बैक प्रेशर पे ध्यान देना है, अगले शॉट में जो भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप नहीं करें उस पर ध्यान दीजिए। तो माइंड उसको पे एक्ट करेगा और वो 10 मार पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या है कि हमें सोशल मीडिया प्रेशर आज बहुत आगे हैं। चैंपियन जो होता है वो जरूर व्हाट्सएप देखिए, जरूर फेसबुक देखिए, जरूर इंस्टाग्राम में जाइए, जरूर आपका ट्विटर हैंडल देखिए, लेकिन कंपटीशन के पहले माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आपके बारे में डाल देगा तो आपको नींद नहीं आएगी रात में। अगर नींद नहीं आएगी आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो सोशल मीडिया एक्सपोजर को रिड्यूस कीजिए प्रायर टू कंपटीशन। आपके अंदर वो डिसिप्लिन होनी चाहिए कि नहीं हमें कॉल नहीं लेंगे, डिसिप्लिन होनी चाहिए कि हम एक रिमोट अपना कॉल, अपने फोन, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक बंद कर देंगे, हम नहीं देखेंगे 15 दिन। हम जीतेंगे उसके बाद हम जरूर डालेंगे और फिर से फैन फॉलोइंग फॉलो करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में ध्यान देना। लास्टली हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपको जो इनर जोन जो बोलते हैं, जो कि आपने ब्रैडी एलिसन को देखा, जो हमने किया, हमने हमेशा अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते थे। तो इनर जोन क्या होता है, जब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आपके शॉट्स को, वो तभी पॉसिबल है जब आप ब्रीदिंग कीजिए, मास्टर कीजिए ब्रीदिंग को अपने और रिलैक्स कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ टॉक करना। आप सेल्फ टॉक से क्यूज बनाइए जो आपको पॉजिटिव रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअल इमेजरी, क्योंकि विजुअल इमेजरी जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है, आप डिफरेंट सिमुलेट करते हैं कंडीशंस को, जीतते हुए देखते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो उससे आप क्या होंगे, काम होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, केयर फ्री होंगे, फोकस्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। अगर ये 5 एट्रीब्यूट आप अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं तभी आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। हम ये नहीं बोलते कि आप नहीं जीत पाएंगे, आप लगातार ओलंपिक में जीत पाएंगे। फर्क क्या है, एक बार ओलंपिक में जीतना, 4 बार ओलंपिक जीतना। कार्ल लुइस ने 4 बार ओलंपिक में
पदक जीता, 16 साल तक जीता। वो तब कर पाया क्योंकि उसको अपने मेंटल फैक्टर्स पे कंट्रोल कर पाया था। लास्टली sir, sorry to disturb Sanjeeva sir. Yes sir, can you select the view options or on top and clear the screen so that this drawings which clear the screen. Clear. More. Yeah, clear the annotation. Something Where would is be the there. clear? There's no sign. नहीं. Over annotations, something annotations are there. नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है. Okay, then one thing we can do, we can stop stop sharing for 1 second, then again share. Okay. And then make sure that annotation is disabled. 1 minute. Disable annotations. Yeah, it's disabled. Okay, now it. Now, friends, I want to talk about when I finish this this thing. I want to show you the last year Komlika Bari won the gold medal against Sunada Waka. अब हम देखते हैं कि what did Komlika do because of which she won the gold medal. Please see this video. ध्यान से देखिएगा. Can you see the video? Regulation play. Yes, sir. Great shot there. Yeah. So Sonada can win this. We go to a shoot off. 10. But Bari is back in the middle. This is what you want to see in a gold medal final. Nine or 10 on the line. It's too close to call right now. She really needs a 10. Yes. Long hold. Shaking. Oh, 9. They are close. I think it's 9 to win, not 10 to win. That's a 10. आपने देखा यहाँ पे कोमलिका बारी को लास्ट एरो चलाना था. आपने देखा जैपनीज आर्चर ज्यादा टाइम ले रहा था. वहीं पे आपने कोमलिका बारी को देखिए. सोचिए उसके मेंटल स्थिति को. वो लास्ट एरो उसको चलाना है. वो जानती थी कि अगर 10 मारेगी तभी जीतेगी. लेकिन उसके शूटिंग को देखिए. बोल्ड शूट किया, कॉन्फिडेंट शूट किया, एरो के बारे में ध्यान नहीं दिया और उसने 10 मार के कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी. तो फ्रेंड्स, हम सब ये कर सकते हैं. देखिए, ये हमें अपने आर्चर्स को ट्रेन करना है और आर्चर्स को ये रियलाइज करना है. अगर वो स्कोर के बारे में सोचेंगे, अगर वो अपोनेंट के बारे में सोचेंगे कि उसको हमें लास्ट एरो चलाना है, हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, आउटकम के बारे में सोचने लगेंगे, कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे. अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, हमें पॉजिटिव शॉट मारना है, कॉन्फिडेंट शॉट मारना है, टाइट शॉट मारना है, बैक प्रेशर को ध्यान देना है, बो हैंड को स्ट्रांग रखना है, तो आप 10 मार पाएंगे. तो ये दर्शाता है कि अगर माइंड को हम ट्रेन कर पाएंगे, इनर जोन में जा पाएंगे, तो हमेशा हम अपने को किसी भी स्थिति में हम जीत पाएंगे. तो फाइनली हम एक ही चीज आप लोगों को बोलना चाहेंगे समेशन में कि आपको विनिंग को एक डेली हैबिट बनानी होगी. मेंटल टफनेस डेली आपको करना होगा, ट्रेन करना होगा माइंड को, रिलैक्सेशन के लिए, माइंडफुल के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए. गोल सेट कीजिए, वो गोल जो आप एस्पायर कर पाए. एस्पिरेशनल होना चाहिए, जो सोने नहीं दे, लेकिन साथ ही साथ अचीवेबल होना चाहिए. माइलस्टोन बनाइए. टॉक पॉजिटिवली. आप हमेशा अपने बारे को पॉजिटिव बारे में सोचिए और तब आप देखेंगे कि सेल्फ टॉक बहुत आसान से होगा. रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि आप हर एक स्थिति में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, नेशनल चैंपियनशिप में, सिलेक्शन ट्रायल्स में, इन सभी में आप अपने को देखिए. हर एक टूर्नामेंट को एक बराबर लीजिए. अपने को देखिए जीतते हुए, अपने को देखिए हमेशा हर विपरीत परिस्थिति में जीतते हुए. उसके लिए सिमुलेशन कीजिए. अगर आप ये कर पाएंगे फ्रेंड्स. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोमलिका ने दिखाया था कि उस समय उसके दोनों जो कोच थे, वो दोनों जो उसके पर्सनल कोच नहीं थे, दूसरा कोच टीम लेके गया था, लेकिन तो भी उसने मारा. तो हमें पैरासाइट नहीं बनाना है अपने प्लेयर्स को. ये नहीं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आप जीत नहीं पाओगे. नहीं, एक अच्छा कोच वो होता है कि वो नहीं रहे, उसके बावजूद उसका आर्चर परफॉर्म करना चाहिए. वैसे आप प्लेयर्स तैयार कीजिए, क्योंकि कोच कोई भी जा सकता है, लेकिन माइंड
आर्चर का होता है। माइंड उसको ट्रेन करना है, उसके माइंड को ट्रेन कराइए, साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लीजिए, मेंटल ट्रेनर्स का हेल्प लीजिए और जल्दी शुरू कीजिए। ये नहीं कि जब आप टॉप 10 में आ जाएंगे तभी हमें मेंटल ट्रेनर चाहिए, साइको नहीं। आप जब 16 साल के, आज आपको साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया आपको वो फैसिलिटीज दे रहा है, खेलो इंडिया में 5 लाख रुपए दे रहा है, इसका फायदा उठाइए। एक मेंटल ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, इनके सपोर्ट टीम को आप लीजिए। आज थैंक्स टू द साई, आज हम लोग पूरे मीडिया में पूरा आपको इसके जरिए एक एक का मोबाइल नंबर और ईमेल हमने भेजा है, इसलिए भेजा है, एआई ने भेजा है आपको, जिससे कि आप दूर दराज में कहीं गांव में बैठे हुए आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को, एक फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट को, एक फिजिकल ट्रेनर को, एक मेंटल ट्रेनर को अप्रोच कर सकते हैं, जान सकते हैं डिजिटल मीडिया के जरिए। तो आज जो इतिहास किया है एआई और साई में, हम उनका आधार व्यक्त करना चाहेंगे। और अब हम बोलेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हो वो काइंडली आप अपने चैट बॉक्स में लिखे, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर समय के भाव से नहीं कर पाए तो हम लोग लिख के भेजेंगे। आप फेसबुक पे, ट्विटर हैंडल पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू all who have been listening, wishing you success, keep hitting the bullseye, get the mental confidence. I am sure in Tokyo we will return back with a gold medal, thanks to Sai and AI. Thank you. अगर कोई questions हो, can I take on the chat box? चैट बॉक्स पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप उसका आंसर कर पाएंगे। Biswajit, can you open the chat box so that we can see the chat box? Yeah, there are. पहला एक क्वेश्चन जिन्होंने किया है कि कितने साल पहले आर्चरी शुरू कराना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग ने टाटा अकेडमी और डिफरेंट सेंटर्स में लेते हैं बच्चे, वो हम लेते हैं 12 से 14 साल के। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को आर्चरी शुरू कराना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उम्र होता है 6 से 8 साल का। 6 से 8 साल में अगर आप ट्रेन करेंगे तो आप उन बच्चों को, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा अडॉप्टेशन कर सकता है बच्चा, तो उनको सीखने का मौका मिलेगा और उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, माइंड उनका राइप रहता है। और अगर फंडामेंटल्स हम उनका स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो उन बच्चों को हम आगे 14 साल तक हम ऑलरेडी चैंपियन बना देंगे। क्योंकि काइंडली आप नोट करें, और ये हम बताना चाहेंगे सभी को, कि एक कॉमन चीज जो आप देखेंगे जब आप क्लास में पढ़ते हैं, जब आप कक्षा 1 से लेके आप 12 तक पढ़ते हैं, एक चीज जो कॉमन होता है, वो क्या चीज कॉमन होता है? वो ये कॉमन होता है कि जो टॉप के 6 लड़के हैं वो हमेशा 1st to 6 में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बचपन से उनको पता नहीं होता है टॉप क्या होता है, लेकिन जब टॉप करते हैं तो पूरे परिवार वाले उनको शाबाशी देते हैं, उनके पेरेंट्स उसके बारे में बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो उनको अच्छा लगता है। वो अच्छे लगने का जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो उनको लगातार 1st और 2nd और 3rd आने पे हमेशा मानसिक संतुलन बनाने में मदद करती है। वो बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए लगातार 12 तक आप देखेंगे जो टॉप 6 स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा टॉप स्टूडेंट है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 6 से 8 इयर्स की उम्र में जब बच्चा 3 से 4 क्लास में हो, उनको आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में ले जाएं, अपने आसपास के उनको ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि ये आर्चरी एक ऐसा गेम है, एक मानसिक गेम है जो कि आपके पढ़ाई में भी मदद करेगा। दूसरा जो एक क्वेश्चन पूछा है, क्या हम अपने बच्चों को वीडियो में अलाउ करें, वीडियो दिखाना? बिल्कुल। एक चीज हमने बताया था मेंटल ट्रेनिंग के बारे में, आप अच्छा चीज देखेंगे, आप अच्छा चीज करेंगे। ये आप देखिए, ये हमारा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है। जिस परिवार में गुड वैल्यूज की बात की जाती है वो परिवार हमेशा उसके बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर आप अच्छा टेक्निक सीखेंगे शुरू से, एक अच्छे टॉप कोच का अगर वीडियो देखेंगे, एक अच्छे टॉप कोच कैसे सिखा रहा है देखेंगे, तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। Sir, Biswajit here. Sir, Mehboob has asked, sometimes we don't feel anything in the competition. What is the reason behind it and how can we overcome this problem? देखिए, सबसे बड़ी बात हमने आपको एक बताई थी, माइंडफुलनेस की। देखिए, आर्चरी एक ऐसा मानसिक स्पोर्ट है जहां पे माइंड में थॉट्स जो आते हैं वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप थॉट्स को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो आप मानसिक संतुलन आपको बढ़ा देता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है,
अगर थॉट्स आया कि लोग हमें देख रहे हैं, सोचिए, भूल जाइए। अगला थॉट आएगा हमें अच्छा परफॉर्म करना है। अगर अच्छा परफॉर्म करना है, क्यों करना है, उस पे मत जाइए, जाइए क्यों के ऊपर। क्यों क्या मतलब है कि अगर हम एक्शन पे ध्यान देंगे, अगर हम अपने पॉजिटिव शूटिंग सीक्वेंस पे ध्यान देंगे, जिसे हम ब्रेन का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसको अगर ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान विचलित नहीं होगा और आप अच्छा तीरंदाजी कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ द शॉट पे ध्यान देना। जो आपको जो एक्स मारते हैं, जो प्रैक्टिस में जब आप एक्स मारते हैं, वो फीलिंग क्या है, उस फीलिंग को अगर पकड़ के रखेंगे तो आप और अच्छा आर्चर बन पाएंगे। इसलिए फीलिंग्स को पकड़िए, अच्छे फीलिंग्स को, और जो बुरे फीलिंग्स को जाने दीजिए। बहुत लोग ने बोला कि टारगेट फीलिंग पैनिक आता है, क्लिकर का क्या करना चाहिए। अब आपको बता दे जो हमारे जो अकेडमीज और ट्रेनिंग सेंटर में हम कैसे ट्रेन करते हैं। 10 मीटर की दूरी पे हम बिना क्लिकर के उनको तीर चलाने देते हैं। क्लिकर एक शायद याद, जो एलीट आर्चरी का हमने एक सेशन लेंगे, एलीट आर्चरी में बोला, हम बताएंगे आपको, जो लोगों के मन में धारणा है कि एक एंकर करना और क्लिकर, उस पे हम शूट करते हैं। तो आपको बता दे, आज वर्ल्ड आर्चरी में लोग जो बैक फीलिंग होता है, जो बैक प्रेशर की फीलिंग है, वो दर्शाता है कि आप क्लिकर पे पहुंच गए। अगर आप वो फीलिंग को पकड़ लिए कि ये मेरा बैक फीलिंग का प्रेशर है, ये प्रेशर पे हमें रिलीज करना है, तब आपका मास्टर कर पाएंगे क्लिकर को, और अच्छा कर पाएंगे, और आप एक वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट बन पाएंगे। So there's a question from Shubhashini. She's asking, does the mental training be given, should the mental training be given in certain specified intervals, or does this apply for an archer in an initial stage itself? Very good question. मेंटल ट्रेनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ी अच्छी तरीका क्या होता है, सुबह जब उठते हैं और रात में सोने के पहले, दोपहर में सोने के पहले, आप बेड पे लेट जाइए, माइंड को फील्ड में ले जाइए, कंपटीशन सिचुएशन में ट्रेन कीजिए। पहले आपको सुबह, दोपहर, शाम कीजिए जब आप रेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद जब आप फील्ड में कंपटीशन में जाएं, बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस और कंपटीशन, सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, मेंटली ट्रेन योरसेल्फ कि हमें क्या करना है, किस चीज पे ध्यान रखना है। अपने को देखिए अच्छा शूट करते हुए, टाइट शॉट मारते हुए, बो हैंड स्ट्रांग है, टाइमिंग अच्छा है, बैक प्रेशर अच्छा है, और तब आप अपने को ट्रेन कीजिए, माइंड में 36 एरो चलाइए। फिर जब आप जाते हैं 36 एरो चलाने में, आपको माइंड ऑलरेडी ट्रेन होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप और अच्छा शूट करेंगे। तो ट्रेनिंग जो है, इन बिटवीन द शॉट्स, इन बिटवीन द ट्रेनिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, ये जितना ज्यादा आप माइंड को ट्रेन करेंगे, साइंटिफिकली प्रूवन है। हमने 1986 की बात बताए, हम लोग जब चैंपियनशिप, हम उस समय इंडिया टीम में एशियन गेम्स में खेल रहे थे, हमने उस समय रिक मकीनी और डेरिल पेस, 2 वर्ल्ड के टॉप वर्ल्ड चैंपियन थे, उनसे बात किया। टाइम मैगजीन में 1986 में एक फोटोग्राफ आया था, रिक मकीनी और डेरिल पेस पे प्रोब लगा के उनके माइंड पे उसको रीड किया जा रहा था इकोकार्डियोग्राम में कि कैसे माइंड बिहेव करता है जब वो 10 मारते हैं। तो सोचिए 40 साल पहले माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए, यूएसए कर रहा था। आज हमें जरूरत क्या है कि हम जितना ज्यादा माइंड को ट्रेन करेंगे पॉजिटिव के बारे में, शूटिंग के बारे में, अपने फॉल के बारे में, तब आप उतने अच्छे माइंड को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे वो डर गायब हो जाएगा, आप देखेंगे आप बिल्कुल अच्छा शूट कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है फ्रेंड्स कि अगर हम माइंड को, उसके पावर को, उसको समझे और एक हेल्प ले साइकोलॉजिस्ट और मेंटल ट्रेनर का। Another question, it's from Ranjit. How to start this mental toughness in beginners? Can you suggest any basic drill or idea? या देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हम 12 से 16 साल के बच्चों को ट्रेन करेंगे, चलो टीम हो, चाहे साई के सेंटर हो या किसी भी भारतीय तीरंदाजी संघ के कोई भी सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट में है, आप सभी बच्चों को मास जब ड्रिल कराते हैं, मास ड्रिल के पहले आप बच्चों को बोलिए आप अपनी जगह बैठ जाए और अपने माइंड को एक जो आप जो 10 जो हम बोलते हैं ना आर्चरी में, एक बेसिक स्टेप होते हैं, बेसिक 10 स्टेप्स। जब आप स्टैंड करते हैं, स्टैंडिंग होते हैं, खड़े होते हैं, आप बो को नॉक करते हैं, ग्रिप और फिंगर को फील करते हैं, बो को रेज करते हैं, आप फ्री ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एंकर करते हैं, एमिंग करते हैं, रिलीज करते हैं, फॉलो थ्रू करते हैं। जब बेसिक स्टेप्स को एक अच्छे आर्चर को पहले उसको दिखाइए कि देखो ये बेटा, ये देखो ये आर्चर है, ये देखो कितना अच्छा शूट कर रहा है। आप उसके माइंड में उस चीज को दिखाइए कि कैसे वो शूट कर रहा है। अब उसको बोलिए आप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, आप देखो कि जो आर्चर कर रहा है आपसे, जो अच्छा आर्चर है वो कैसे कर रहा है, और उस माइंड को 5 मिनट तक तुम देखो हम वही कर रहे हैं। जब आप
8 साल से 10 साल और 12 साल के बच्चों को एक अच्छे आर्चर का मॉडल को डेवलप करके, एक अच्छा राइट सीक्वेंस को डेवलप करके उसको माइंड को ट्रेन करने का सिखाने लगेंगे, बच्चा बहुत रिसेप्टिव होता है फ्रेंड्स। आप देखेंगे जो उम्र होती है 5 साल से लेके 10 साल में सबसे ज्यादा रिसेप्टिविटी होती है माइंड में। अगर उस समय में आप बच्चों को सही ट्रेनिंग और फंडामेंटल बता पाएंगे, माइंड को ट्रेन करने का, रिलैक्सेशन करना, रिलैक्सेशन के लिए क्या करना, सिंपल स्टेप बताइए बेटा, पेट से ब्रीदिंग करो और धीमे धीमे छोड़ो। ये सिंपल सा है, ये ब्राह्मणी प्रणाम आप योगा में आप देखते हैं, उस चीज को छोटे स्केल में आप अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे वो ब्रीदिंग करे, रिलैक्स करेंगे, वो धीमे धीमे अपने को फील कर पाएंगे कि पावर जो होता है वो ऑक्सीजन से आता है, वो ब्रीदिंग से आता है। तो पहला चीज आप सिखाएंगे ब्रीदिंग कंट्रोल, दूसरा सिखाएंगे माइंड को रिलैक्स करना, क्योंकि जब ब्रीदिंग करेंगे और स्लोली ब्रीथ छोड़ेंगे अपने आप काम होंगे। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, राइट शॉट को माइंड में रख के ट्रेन करना। ये किसी भी स्थिति में आप 8 साल से बच्चों को ट्रेन कीजिए, आप देखेंगे 14 साल की उम्र में मेरी गारंटी है कि वो बच्चे बहुत ही परफेक्ट शूटिंग करेंगे, क्योंकि बेसिक और फंडामेंटल अच्छा होगा। और जो आप चाइना 18 साल में कर रहा है, हमारे बच्चे जो खेलो इंडिया में 16 साल में करके दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। Another question, sir. It's written, as a coach, how to understand if my trainees are feeling mentally good or not? जैसा हमने बताया था कि देखिए 12 सिम्टम्स हम बताए थे। जब आप देखेंगे कि लड़का शिवर कर रहा है, डर रहा है, नर्वसनेस नहीं हो रहा, ब्रीदिंग का हेल्पनेस हो रहा है, तो अगर उसके अंदर में कोई भी ऐसा नर्वसनेस की सिम्टम दिखेगी, कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी, उसका स्कोर जो प्रैक्टिस में मारता है कंपटीशन में कम दिख रहा है, उसको डर लग रहा है, तो ये सब जब आपके सिम्टम, पसीना आ रहा है, तो जब आप देखते हैं उसको कोल्डनेस हो जाएगा, उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, तो दैट मीन उसको नर्वसनेस, फियर और एंजाइटी आ रही है। अगर ये बहुत सिंपल सिम्टम्स है, ये एक कोच देख के आर्चर को पकड़ लेता है कि जब उसका देखता है कि पहला एरो उसने 6 में मारा, मतलब वो मेंटल एंजाइटी में आ गया, वो प्रेशर में आ गया, वो आउटकम के बारे में सोच रहा है, बनस्पत वो शूटिंग के बारे में सोच रहा है। तो ये सिम्टम्स एक कोच को पकड़ना चाहिए, उसको ये नहीं वो टेक्निक करो, टेक्निकली माइंड को ट्रेन करो बेटा, माइंड को सोचो कि क्या 10 सीक्वेंस है, माइंड को सोचो कैसे हमें ट्रेन करना है, तब आप देखोगे कि वो बच्चा और अच्छा कर पाएगा। Another question, sir, someone has asked how to control target panic. देखिए टारगेट पैनिक का जो सबसे अच्छा तरीका है, पहले चीज है कि फेस मत लगाइए, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाइए, बिना फेस के, बिना क्लिकर के उसको शूट कराइए। उसको पहले ट्रेन कीजिए माइंड को कि बेटा पहले जो शूट करना है, पहले माइंड को बोलो क्या करना है तुम्हें, उसको बेसिक 10 स्टेप्स को माइंड में रिपीट करने को बोलिए। हम लोग क्या करते थे, आपको शायद बता दे, मुंडा जी जानते हैं, जब हमने जमशेदपुर में स्कूल्स के अंदर में आर्चरी शुरू किया, हमारे पास एक जो वर्ल्ड के चैंपियन थे प्रोफेशनल शूटर जोनाथन पॉल डुडले आए थे। हम कदमा के एक स्कूल में जहां पे वर्कर के बच्चे हैं उनको हम लोग ट्रेन कर रहे थे, वो केजी और अपर केजी के बच्चे थे, वो हमारे मजदूर के बच्चे थे। उन बच्चों को हम लोग ने आर्चरी का फंडामेंटल सिखाया एक गुलेल से, एक हमने लकड़ी पे गुलेल का बना के उनको बोला कि तुम ड्रॉ करो, कि कैसे हैंडल का ग्रिप बनाया और गुलेल की तरह के, और उसमें ड्रॉ करना सिखाया। वो कोई देखिए ये इसे बोलते हैं इंडिया का जुगाड़। हमने गुलेल से उनको एक बना के उनको बोला आप ड्रॉ करो। जब वो जोनाथन पॉल डुडले ने देखा कि 6 साल के बच्चे गुलेल से और खींच रहे हैं और फिर ड्रॉ कर रहे हैं, वो ताजुब किया। वो बोला वर्ल्ड में ऐसा कोई सोचा नहीं था कि एक गुलेल से आप उसमें रबर बना के आप खींच सकते हैं और उसको रिलैक्स कर सकते हैं और बेसिक 10 स्टेप सिखा सकते हैं। अगर हम केजी में, अपर केजी में, क्लास 1 में ये बच्चों को एक छोटा सा एक ग्रिप बना के और उसमें से रबर लगा के अगर सिखा सकते हैं, फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, हमारा जो प्राचीन सभ्यता में हम बोलते थे कि हम अर्जुना और कर्ण और ऐसे जो द्रोणाचार्य जैसे जो गुरु थे वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, और रिजू जी जैसे बोले कि हम फिर से दोनों आदमी, हमारे पास लकली बहुत बड़ी चीज है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद खिलाड़ी है, तीरंदाजी से जुड़ा हुआ है। अर्जुन मुंडा एक ट्राइबल आर्चर है, आज अध्यक्ष है। इससे बड़ा सौभाग्य पूरे भारतीय इतिहास का कभी नहीं होगा कि 2 ऐसे लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो आज आपके साथ कंधे से कंधे लगा के आपको पदक दिलाने के लिए जुड़े हुए हैं। थैंक यू किरण साहब एंड थैंक यू अर्जुन मुंडा जी। Sir, one more question is coming in from Ranjit. Sir, he is asking, अभी इन दिनों में जब हम लोग पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना फोकस और स्किल को कैसे मेंटेन करें ड्यू टू दिस लॉकडाउन?
वेरी गुड क्वेश्चन। आज देखिए कोरोना का समय है, भारत प्रधानमंत्री जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हम लोग को घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहने के लिए आप बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। अगर आप YouTube पे जाएंगे आपको अच्छे वर्ल्ड चैंपियनशिप के वीडियोस देखने को मिलेंगे। ध्यान से वीडियोस को देखिए। अच्छे जब गोल्ड मेडल जीतते हैं वो कैसे जीतते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कुमलिका बारी को क्या किया उसने, जब आप देखते हैं कि यूएसए का टीम खेलता है वो क्या किया, जब कोरिया टीम खेलता है उसने क्या किया। देखिए वीडियो है, वीडियो झूठ नहीं बोलता। आप जब वीडियो को देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कितना कॉन्फिडेंस से शूट करते हैं, उनका बो हैंड कैसा टाइट बो हैंड है, टाइट शॉट मार रहे हैं, टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं। तो पहला चीज है वीडियो देखना। दूसरा चीज है जब वीडियो अच्छा वीडियो देखेंगे अब अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। आप देखे होंगे साई ने और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिटनेस के गेम स्टार्ट किए हैं। उन्होंने वीडियो ऐप डेवलप किए हैं, उन्होंने हर तरीके से डिफरेंट व्हाट्सएप के जरिए आपको बताए जा रहे हैं कि घर के अंदर फिजिकल फिटनेस करना। चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आप आपके घर में अपना बो होगा। आपको अगर देखेंगे जो नेक्स्ट अपना सेशन है स्काउटिंग का, जब पूर्णिमा महतो जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी है झारखंड की, वो बताएंगी कि कैसे हम अपना बो को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम बो को होल्ड करते हैं। अगर आप बो को ड्रॉ करके होल्ड करेंगे, आपको बताए लिम्बा राम, जब हम लोग ने लंदन ओलंपिक्स के पहले जब ट्रेन करते थे, लिम्बा राम एक ऐसा खिलाड़ी था जो एक घंटे तक लगातार बो की हम और करते थे और ड्रॉ करके एक मिनट तक होल्ड करते थे। क्यों? वो मेंटल पावर डेवलप करना चाहता था कि अगर हम इतना कंट्रोल डेवलप कर ले कि हम अपना परफेक्ट शूट कर पाए। और इसीलिए लिम्बा राम बना, क्योंकि वो एक ट्राइबल खिलाड़ी था, आदिवासी खिलाड़ी था राजस्थान के, लेकिन उसने माइंड, उसको पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसका माइंड बहुत था। वो जानता था कि अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे बॉडी को और माइंड को, तो वो आप देखेंगे कि सेकंड था। अगर रैंकिंग राउंड में वो सेकंड था ओलंपिक्स में बार्सिलोना में, वो जीत नहीं पाया। अगेन उसका एक अलग स्टोरी है, वो हम किसी और समय बताएंगे। बट इंपॉर्टेंस ये बोलना चाह रहे हैं, कंट्रोल पावर ये हम बो को ड्रॉ करके कर सकते हैं। माइंड ट्रेनिंग हम अपने वीडियोज और अपने को ट्रेन करके कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस हम घर में, जैसा कि साई और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बताता आ रहा है, अगर हम उसको फॉलो करें, हम घर में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजी से फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं। तो माइंड, फिजिक और टेक्निकल, विच इज द ड्रॉ एंड होल्डिंग, अगर ये तीन चीज आप कर लेंगे, हमें श्योर हैं आप सभी अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। और अपने कोरोना के समय में भी आप माइंड को ट्रेन करके लगातार न्यूरॉन्स से माइंड के सिग्नल भेजे, आप उन मसल्स को ट्रेन कर पाएंगे। और आपके मसल्स अगर ट्रेन हो गए, आप जब जिस दिन आप खेलना शुरू करेंगे 1 जुलाई को, आप पाएंगे आपको किसी भी तरीके के, किसी भी कीमत में आप कोई भी कमी नहीं है, पहला एरो आपका एक्स में लगेगा। So we'll take one last question of the session. It is written that what should we do, or what would be the periodization to get peak form in the tournament? Kindly spread your knowledge. देखिए हम लोग एक सेशन लेंगे GTMT का पीरियडाइजेशन के ऊपर, जहां पे रुपेश सिंह जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं वो बताएंगे इसके बारे में। हम बहुत संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप किसी टूर्नामेंट के तैयारी करेंगे उसमें 4 भाग होते हैं। एक होता है स्टेमिना, एक होता है एंड्योरेंस। बहुत लोग सोचते हैं आर्चरी में स्टेमिना एंड्योरेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो एरोबिक एंड एनारोबिक कैपेसिटी होती है जो लंग्स की, उसको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाना, क्योंकि 300 बार आप तीर चलाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको जिम से चाहिए। तो आपको कम से कम 3 दिन हफ्ते में 16 साल की उम्र के बाद आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, कोच के एक फिजिकल ट्रेनर के अंडर में। साथ ही साथ एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अगेन फिजिकल ट्रेनर आपको गाइड करेगा। इसका जो इंटेंसिटी है 3 महीने पहले कंपटीशन के और कंपटीशन के बाद आपको रिड्यूस करना पड़ता है। एरोज जो है, पहले हम क्या करते हैं, स्किल बेस्ड और टाइम बेस्ड शूट करते हैं। 10 सेकंड के अंदर हमें चलाने की आदत होनी चाहिए, तो हमें टाइमर के साथ चलाना पड़ेगा। हमें 300 एरो चलाने पड़ेगी शुरू में, और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आते हैं आप 300 से लेके 100 एरो जाते हैं। तो क्या होता है, इंटेंसिटी आपकी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप क्वालिटी शूटिंग की तरफ जाते हैं और आपका वॉल्यूम का शॉट कम होता है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी और वॉल्यूम को कंबाइन करके एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का, मस्कुलर स्ट्रेंथ और योगा जरूर कीजिए। योगा अपने प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। योगा मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा करेगा माइंड को कंट्रोल करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। तो योगा कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, आपके
एंड्योरेंस के लिए आप अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए रनिंग कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने एरोस को क्वांटिटी बढ़ाइए पहले 6 महीने पहले, और जैसे कंपटीशन के नजदीक आएंगे क्वालिटी बढ़ाइए। आपके माइंड को ट्रेन कीजिए परफेक्ट शॉट शूट करने को। अगर आप हर शॉट वो 300 शॉट परफेक्ट शूट करने के लिए माइंड को ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपका कंपटीशन नजदीक आएगा, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एरो का, क्वालिटी शूटिंग का, आप और अच्छा आपके ग्रुपिंग बढ़ेंगे, आप एक्स में मारेंगे। और जब कंपटीशन के पहले आप ग्रुपिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम 340 मार सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे चैंपियनशिप में। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आई वांट टू थैंक अगेन किरण रिजिजू जी, अर्जुन मुंडा जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल मिस्टर संदीप प्रधान, और हमारे जो शिव शर्मा जी हैं जो हमारे रीजनल डायरेक्टर, चंदुकर जी जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे दोनों कोच डेवलपमेंट कमिटी के इंचार्ज जो हमारे हुसैन शिहानी जी, और साथ ही साथ डॉक्टर जोरिस, और मेरे पूरे एआई के पदाधिकारी जो उन्होंने सब ने मिलके आज एक इतिहास रचा है, थैंक्स टू द एआई एंड द साई। एंड ये चीज जो डिजिटल एजुकेशन है आज हम स्पोर्ट्स में भी आगे लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में अगर हम इकोसिस्टम बनाएंगे, माइंड को ट्रेन करेंगे, जैसा कि रिजू जी ने बोला और अर्जुन जी ने बोला, टोक्यो ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल ला के दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। One small thing I would just like to mention, this is Vishwadeep here. I would like to mention to all the participants who are participating in our Zoom sessions to log in to our Zoom session for archery at same time tomorrow, that is around 8:45 a.m. Session will be going live from 8:45 a.m. and the session will start, the speaker will start speaking at 9. And also from tomorrow, like you have done today, please put all your queries. If you have any queries, please try and put your queries in chat boxes, and your queries will be answered as was done today. Thank you. आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। सबसे पहले तो अर्जुन मुंडा जी, हम दोनों पूरे जुड़े रहे और पूरा सुन रहे थे, और संजीवा जी का जो सेशन है उनका अपना एक्सपीरियंस और प्लस जो इनपुट्स बाकी दुनिया के महान खिलाड़ियों और कुछ एक्सपीरियंसेस दुनिया का जो जिससे सीखने लायक है, ऐसे इंसिडेंट को भी कलेक्ट किया और अपना नॉलेज और स्टडीज के माध्यम से बेहतर करके जो उन्होंने शेयर किया, ये बहुत ही लाभदायक है। इट्स अ वेरी एनरिचिंग सेशन एंड इट विल बेनिफिट एवरीवन। और जो मुझे लगता है कि जो सुनने वाले हैं इसमें काफी कोचेस हैं जो लोग अपने आप में बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, और मैं कुछ बीच बीच में एक दो फोटो दिखाई दिया जो काफी यंग बच्चे, शायद वो ट्रेनर्स होंगे, खिलाड़ी होंगे, या आगे जाकर के आर्चरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे भी होंगे। तो काफी यंग जो अपने एथलीट्स को भी मैंने फोटो में बीच बीच में देखने को मौका मिला। तो जो नए हैं उसको भी बहुत सीखने को मिल रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस वाला है उनको भी अपडेट करने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों के बीच में भी शेयर होना चाहिए अपना थॉट्स एंड आइडियाज, क्योंकि अपडेशन, हम जितना भी एक्सपर्ट हो अपडेट करते रहना और नए नए सीखते रहना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत कुछ कोचेस और एक्सपर्ट से इस तरह का सुनने को मिलता है, तो मुझे भी आइडिया हो जाता है कि क्या चीज वो फील्ड पे कैसे फेस करते हैं और क्या क्या जरूरतमंद है, और पॉलिसी तौर पर क्या क्या हम कर सकते हैं जिस फैसले से लोगों को फायदा हो, खिलाड़ियों को, कोचेस को, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, और सरकार की ओर से क्या क्या करना चाहिए, इसका एक आइडिया रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सुनते सुनते मेरे मन में भी कुछ और आया कि आगे जा करके आर्चरी और पूरा हमारे भारतीय खेल को मजबूती देने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या हम कर सकते हैं, मेरे मन में भी आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आगे जाकर के हम कभी शेयर करेंगे, और बाकी तो अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, जैसे मैंने कहा, अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से आगे सेशन भी चलेगा, मैं तो बीच बीच जुड़ते रहूंगा, क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपने जो
घर के रेसिडेंट्स यहाँ पे यहीं से मैं काम चला रहा हूँ, तो बीच बीच में हम तो जुड़ते रहेंगे। मैं अभी ऑफिस में रहूंगा तो मेरा पेपर पर देखना चलते रहेगा और मैं सेशन में जुड़ते रहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। मुझे मालूम नहीं कि सेशन का फॉर्मेट क्या है, लेकिन शायद और भी जुड़ेंगे और कोचेस अभी आएंगे। अभी संजीवा सिंह जी का सुना, आगे भी मैं जुड़ते रहूंगा। और अर्जुन जी भी पूरा लगता है कि वो भी ऑफिस में बैठे हैं अपने घर के ऑफिस में, तो वो भी लगातार ऑफिस में बैठा हुआ तो इसलिए बहुत अच्छा लगा और आगे चलते रहिए, मैं भी जुड़ते रहूंगा। चलिए मंत्री जी, बहुत धन्यवाद। आपने पूरा समय दिया और संजीवा सिंह ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, अब लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, लोग बहुत इससे लाभान्वित होंगे और हिंदुस्तान को फायदा होगा, इस देश को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।